नमस्कार विद्यार्थियों, आर के कर्नाटक हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंदिನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯ 2ನೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗಾಗಲೇ 1ನೇ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ 1 ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ನೀವು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। सीखने के प्रतिफल 2 ಅಂದರೆ ಇದು 2ನೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, पढ़ी सुनी कहानी कविता आदि के माध्यम से संदर्भानुसार वर्ण तथा मात्राओं को सीखेंगे। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಕಲಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ। ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗತಿವಿಧಿ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿನಾ ಮಾತ್ರ ವಾಲೆ ಸರಳ ಶಬ್ದ, ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳು। अब जिन वर्णों में कोई मात्रा नहीं है, बस उसकी सहायता से हमें सरल शब्दों को सीखना है। अभ्यास देखिए, अभ्यास 2.1 नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। अब बहुत ही सरल है ये टास्क। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर जैसे शब्द हैं बस हमें वैसे ही लिखना है। तो एक एक करके हम लिखते हुए चलेंगे। कल है, फिर यहाँ पर जल है, फिर यहाँ पर फल है, फिर यहाँ पर हल है, फिर यहाँ पर थल है। ठीक उसी प्रकार से आपको ऐसे शब्दों को पढ़ते हुए लिखते जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे जो ऊपर शब्द हैं बस उन्हीं के जैसे आपको नीचे भी लिखना है। बहुत ही सरल टास्क है। तो ये पेज आपको समझ में आ गया है ऐसा मानते हुए हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, अभ्यास 2.2 नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर आप नमूना देखेंगे तो देखिए यहाँ पर म है, न है, क है। तो इन अक्षरों को सही क्रम से जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ ಇದೆ, ಭ ಇದೆ, ನ ಇದೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭವನ್। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಇದೆ, ಸ ಇದೆ, ಯ ಇದೆ। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಸಮಯ। ಹಾಗೆ ಹ ಇದೆ, ಸ ಇದೆ, ನ ಇದೆ, सहन। ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ ಇದೆ, ನ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಅರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡುವಂಥ ಶಬ್ದ ಗಗನ್। ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನ ಇದೆ, ನ ಇದೆ, ಯ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಯನ್। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ ಇದೆ, ಪ ಇದೆ, ನ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಪವನ್। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಮನ್। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಜಗತ್। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಚಲನ್। ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಚಮನ್। ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೀಬೇಕನ್ನೋದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು। ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಭ್ಯಾಸ 2.3 बिना मात्रा वाले सरल शब्द लिखिए। जैसे शरबत, बर्तन। ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
बचपन, लगभग, मजहब, नटखट, अवसर, डटकर, झटपट, मतलब, ಸಮತಲ್. ಸೊ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅಭಾವ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓನಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಓನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಪುಟ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಭ್ಯಾಸ 2.4 ಅಕ್ಷರ ಜೋಡ್ಕರ್ ನೀಚೆ ಶಬ್ದ ಬನಾಯಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮೂನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಈ ನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಜವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋಣ. ಜಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫಲ್, ಆಮೇಲೆ ಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಚಲ್, ಆಮೇಲೆ ಹಲ್, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದರೆ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ದಲ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದು ಈ टास्कನ್ನು पूर्णಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो यहाँ पर नीचे क्या है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, शिक्षक प्रतिपुष्टि. आप जो कार्य करते हैं उसे आपके अध्यापक यहाँ पर प्रतिपुष्टि के माध्यम से लिखेंगे कि आपने सही किया है तो कितना सही किया है, अगर कुछ गलत है तो क्या गलत है, सब कुछ यहाँ पर आपके टीचर इसके अंतर्गत इस शिक्षक प्रतिपुष्टि में लिखेंगे. ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है ऐसा मानते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಿದೆ, गतिविधि 2 स्वरों की मात्राओं का परिचय. अभ्यास 2.5 निम्नलिखित स्वर और उनकी मात्राओं से मिलान कीजिए और लिखिए. तो यहाँ पर एक बार आप इसे मिलान कर लीजिए, फिर उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए. जैसे ये जो अ है, इसके लिए कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, इसे हमें ध्यान रखना है. एक एक करके मात्राओं का परिचय देखते हैं. आ की मात्रा मैं बता पाऊँ तो ये है आ की मात्रा, और फिर जो ई की मात्रा है वो ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, ऊ की मात्रा यहाँ पर है, फिर ओ की मात्रा यहाँ पर है, और फिर औ की मात्रा यहाँ पर है, आह की मात्रा यहाँ पर है. अब आपको ऐसे ही यहाँ नीचे लिखना है. जैसे कि मैं एक लिख कर आपको बताऊँगा. आप पहले क्या करेंगे, आ लिखेंगे, फिर उसके लिए जो मात्रा है आप उसे इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे. फिर ठीक उसी प्रकार से आप नीचे लिखते जाइए और सभी मात्राओं को दर्शाने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर लिखने का प्रयास कीजिए और सही तरह से लिख कर बताइए. यहाँ पर ये जो कार्य है उसकी प्रतिपुष्टि क्या है, यहाँ पर आपके अध्यापक लिखेंगे. तो अगले विषय की ओर बढ़ते हैं. गतिविधि 3 12 खड़ी लिखना.
अब ये 12 खड़ी क्या होता है देखिए बच्चों, ऐसा होता है वैसे अ से लेकर आह तक अक्षरों की संख्या 13 है, लेकिन अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, इसलिए 13 के बदले में 12 ही माना जाता है, इसलिए इसे 12 खड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए इन्होंने एक नमूना दिया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए स्वरों की मात्रा के साथ साथ क व्यंजन को 12 कड़ी के रूप में लिखा गया है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। चलिए हम भी एक उदाहरण यहाँ पर लिख लेते हैं ख के लिए, जैसे खा, खी, खी, खो, खू, खरी, खे, खई, खो, खऊ, खम, खा। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखकर पूर्ण करना है। तो समय की कमी है, यहाँ पर आप ग से संबंधित लिखेंगे, घ से, च से, छ से, ज से, बस यही यहाँ पर है, आपको ये लिखकर पूर्ण करना है। यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, जैसे झ के लिए यहाँ पर 12 कड़ी पूर्ण करेंगे, ट के लिए लिखेंगे, ठ के लिए लिखेंगे, ड के लिए, फिर ऐसे ही लिखते लिखते आप नीचे यहाँ तक लिखेंगे, जैसे लास्ट में यह है, यह तक भी आप ऐसे ही लिखकर इसे पूर्ण करेंगे। तो ये पेज आपको समझ में आ गया है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी लगभग आपको ऐसे ही लिखना है, ये जो है इसे लिखकर आपको पूर्ण करना है। अभ्यास 2.7 आ की मात्रा का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे के अंतर्गत द, फिर आ की मात्रा, द, फिर आ की मात्रा मिलाकर दादा। लगभग आपको जैसे ये दादा शब्द लिखा हुआ है ऐसे ही आपको शब्दों को लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ माता, राजा, चाचा, पापा, दाना, नारा, मामा, मात्रा, राधा, आटा। तो ऐसे आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है। ये पेज आपको समझ में आ गया है, ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2.8 नमूने के अनुसार ई मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर भी ई मात्रा से संबंधित एक नमूना दिया गया है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। जैसे द व्यंजन है तो फिर उसके बाद ई की मात्रा है और फिर न व्यंजन है, तो इस प्रकार से दिन शब्द को लिखा गया है। लगभग आपको ऐसे ही 3 शब्द लिखना है, जैसे कि पिता आप लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सिर लिख सकते हैं, फिर उसके बाद निशान शब्द लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इनाम शब्द लिख सकते हैं, फिर उसके बाद किरण शब्द लिख सकते हैं, फिर उसके बाद शिव शब्द लिख सकते हैं, फिर उसके बाद बिल शब्द लिख सकते हैं, फिर उसके बाद दिल शब्द लिख सकते हैं,
निवास शब्द लिख सकते हैं। निशान शब्द लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ई मात्रा वाले शब्दों को यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखिए अभ्यास 2.9 नमूने के अनुसार ई मात्रा वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे प के अंतर्गत ई की मात्रा है, फिर प के अंतर्गत ल की मात्रा है और अंत में शब्द बना है पीपल। तो बड़ी ई को आपको लेकर शब्दों को लिखना है। एक एक करके शब्दों को लिखेंगे। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं नीला, फिर सीता, मीना लिख सकते हैं, जीवन लिख सकते हैं, नीम लिख सकते हैं, नींबू लिख सकते हैं, जीत लिख सकते हैं, भीख लिख सकते हैं, दीपक लिख सकते हैं, हीरा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टास्क को पूर्ण करेंगे। आगे देखिए अभ्यास 2.10 नमूने के अनुसार उ मात्रा वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर आप जैसे के अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे कि क है, उ की मात्रा है, श है और फिर ल है। अंत में शब्द बना है कुशल। यहाँ पर जैसे उ की मात्रा के साथ शब्दों को लिखा गया है, लगभग आप उसी प्रकार से 10 शब्द यहाँ पर लिखेंगे। पहला शब्द हम लिखते हैं, जैसे गुरु, तुम, सुख, दुख, कुर्ता, चुप, खुश, छुप, पुत्र, सुविधा। तो इस प्रकार से आप इस टास्क को पूर्ण कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है ऐसा मानते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास 2.11 नमूने के अनुसार उ मात्रा वाले शब्द लिखिए। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे फ है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है, ल है, फिर अंत में शब्द बना है फूल। तो लगभग हमें ऐसे ही लिखना है, जैसे एक एक करके हम लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो शब्द है वो है झूला, खून, रूप, जून, मूली, कूद, पूंछ, पूरब, फूल,
टूट। अभ्यास 2.12 नमूने के अनुसार री मात्रा वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे देखिए वह है, फिर री की मात्रा है, क्ष है, फिर अंत में शब्द बना है वृक्ष। तो हमें भी ऐसे ही री से संबंधित जितने सारे शब्द बनते हैं उन्हें हमें लिखना है। तो एक एक करके देखेंगे। कृतज्ञ, कृष्ण, मृत्यु, वृत्त, कृपा, दृढ़, नृत्य, वृष्टि, कृत, गृह। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अभ्यास 2.13 नमूने के अनुसार ये मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे में देखिए ब है, एक ही मात्रा है, टा है, अंत में शब्द बना है बेटा। तो इसी प्रकार से हमें ये की मात्रा को लेकर शब्दों को लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे मेघ, मेज, जेठ, बेटा, बेटी, खेल, खेत, लेना, देना, देवर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है ऐसा मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2.14 नमूने के अनुसार ऐ मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, देखिए क है और फिर ऐ की मात्रा है, फिर ला है, फिर उसके बाद श है। तो शब्द बना है कैलाश। ऐसे ही हमें लगभग 10 शब्दों को लिखना है। एक एक करके लिखेंगे। पैर, तैर, सैर, गैर, पैसा, पैदल, दैनिक, सैनिक, जैविक, मैसूरू। अभ्यास 2.15 नमूने के अनुसार वो मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे में आप देखिए यहाँ म है, वो की मात्रा है, र है, फिर अंत में शब्द बना है मोर। तो लगभग इसी प्रकार से हमें भी 10 शब्द लिखना है। जैसे लिखेंगे धोबी, लोटा, मूल, बोल, तोल, चोट, चोर, छोर,
मोती, रोटी। तो ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2.16 नमूने के अनुसार औ मात्रा वाले शब्द लिखिए। तो उदाहरण में क्या है, यहाँ पर ग है, फिर औ की मात्रा है और फिर यहाँ पर री है और मिलाकर शब्द को बनाया गया है गौरी। तो लगभग ऐसे ही हमें 10 शब्दों को लिखना है। लिखेंगे। पहला शब्द है कौवा, कौशल, कौन, गौरव, गौरा, गौण, चौथा, चौक, गौशाला, दौड़। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया है। ऐसा मानते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास 2.17 नमूने के अनुसार शब्द लिखिए। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ना है, फिर उसके बाद माँ है। दोनों को एक साथ जोड़कर नाम शब्द को लिखा गया है। लगभग हमें ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर गा है और फिर ना है, तो शब्द बनेगा गाना, हाथ, बाहर, सावन, बात, रात, भारत। फिर अगला शब्द बनेगा नायक, वाहन। अभ्यास 2.18 ई की मात्रा वाले अक्षरों से खाली जगह भरिए। ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರಿಬೇಕು ತಾಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಡಾಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಈ ಟಾಸ್ಕು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. अभ्यास 2.19 पढ़िए और समझकर लिखिए। यहाँ पर क्या है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मेरा मेरी और फिर तेरा तेरी। कुछ नहीं करना है, जैसे ये लिखा हुआ है बस ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है। लेकिन ध्यान रहे पढ़ते हुए लिखना है। मेरा मेरी ಓದುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಚಾಚಾ ಚಾಚಿ ಈ ಕಡೆ, ಕಾಕಾ ಕಾಕಿ, ನಾನಾ ನಾನಿ, ಪೋತಾ ಪೋತಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಮಾ ಮಾಮಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಓದುತ್ತಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್. ಅಭ್ಯಾಸ 2.20 ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಯಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇರಾ ಮತ್ತು ಮೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಮೇರಾ ಭಾಯಿ ಹೈ. ಸೊ ಬಹನ್ಗೆ ಮೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಾಚಾಗೆ ಮೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಗೆ ಮೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿತ್ರಿಗೆ ಮೇರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಪುಷ್ಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, गतिविधि 4 बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले
शब्द से बने छोटे छोटे वाक्यों को लिखना। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ। अभ्यास 2.21 निम्नलिखित सरल शब्दों के वाक्य पढ़िए और लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ। ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು 10 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಹೀಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, जल भर। फिर उसी प्रकार से दोबारा इसे हमें लिखना है जल भर। फिर जो दूसरा वाक्य है उसे हमें लिखना है जैसे कि घर चल। फिर से इसे हमें दोबारा लिखना है घर चल। फिर आगे है मत कर। फिर आगे है, फिर से दोबारा उसे ऐसे ही लिखना है मत कर। फिर उसके बाद लिखना है डर मत। ठीक इसी प्रकार से यहाँ लिखना है डर मत। खत पढ़। खत पढ़। बस पर चढ़। बस पर चढ़। फिर उसके बाद लिखना है छल मत कर। छल मत कर। झट पट उठ। झट पट उठ। अब चल ठहर मत। अब चल ठहर मत। अंत में है फल छत पर रख। फल छत पर रख। तो इस प्रकार से हमें इन सारे शब्दों को 2-2 बार लिखना है। जब भी हम इन वाक्यों को लिखेंगे तब हमें ये ध्यान देना है कि इन्हें हमें पढ़ते हुए लिखना है। फिर उसके बाद नीचे है देखिए सोचिए, सोचने का मौका है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है इस तरह के शब्द सोचकर वाक्य बनाइए। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। एक उदाहरण अगर मैं कहूँ तो पढ़कर समझ। तो इस हिसाब से आप बिना मात्रा वाले शब्दों को लेकर उनसे संबंधित और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभ्यास 2.22 कविता में आए हुए मात्राओं को पढ़कर लिखिए। ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ರಾಜ।
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟು ರ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆರಡರ ಒಂದು ರೂಪ ರ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಜ. ಈ ಜಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರದೆ ಅದು ತನ್ನ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜದಲ್ಲಿ ರ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಜ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ರಾಜ ಕ. ಈ ಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಂಜನ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಮ, ರಾಜ ಕ ಮಾಮ ಆಯ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, गाजर का हलवा लाया. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ, खाकर बाजा बजा. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, बाजा बजाकर मन बहला. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅ ಸ್ವರ ಅಡಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೆ ಇರುವಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಮೇ ಕೌನ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಹೈ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಣ. इस कविता में आ की मात्रा है. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿನ್ಕ ಮಾಮ ಆಯ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಣ. राजा का मामा आया. ओके, ಈಗ तीसरा प्रश्न देखेंगे, मामा ने क्या लाया. तो इसका उत्तर है मामा ने गाजर का हलवा लाया. चौथा प्रश्न देखेंगे, नाल्कने प्रश्न नोड़ना, मन कैसे बहला. बाजा बजाकर मन ಬಹಳ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಚ್ಚು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ आपको ಈ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. अब यहाँ पर क्या है देखिए, अभ्यास 2.23 कविता पढ़कर ई मात्रा वाले शब्दों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए.
ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮछली, ಜಲ್ ಕಿ ರಾನಿ, कितना पानी, इतना पानी, उतना पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, सभी ओर पानी ही पानी. ಇದು ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಯ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಅಲಗ್ ಕರ್ಕೆ ಲಿಖೋ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಈ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಈಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಆ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಮछली. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. तो हम यहाँ पर मछली को लिख लेते हैं, ठीक है. उसके बाद ये की, ठीक है, इसमें भी दीर्घ ई है. फिर उसके बाद रानी, उसके बाद पानी, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद भी, फिर उसके बाद सभी. तो यहाँ पर इतने शब्द हैं जो ई मात्रा के साथ आते हैं. अब दूसरा प्रश्न कौन सा है, इसे हम देखते हैं. जल की रानी कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है. तो जल की रानी, जल की रानी मछली है. ठीक है. अब जो अगला प्रश्न है उसे हम देखते हैं, सभी और क्या है. तो इसका उत्तर है सभी और पानी है. ठीक है. चौथा प्रश्न देख लेते हैं. इस कविता में पानी शब्द कितने बार आया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है. देखिए, इस कविता में पानी शब्द कितनी बार आया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और फिर 9. इस कविता में पानी शब्द 9 बार आया है. तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा है. जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर शिक्षक प्रतिपुष्टि. आपने इस कार्य को कैसे किया है, इसका फीडबैक आपके अध्यापक यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है. तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. बच्चों देखिए, यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन गतिविधि. तो अब इस मूल्यांकन गतिविधि में प्रश्न इस प्रकार से हैं, ऊपर्युक्त कविता में आए हुए 2 अक्षर वाले शब्द लिखिए. तो मैंने उसी कविता को आपकी सहायता के लिए यहाँ पर ले लिया है. तो अब यहाँ से हमें 2 अक्षर वाले शब्दों को चुनकर लिखना है. सबसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द अगर हम कहें तो वो जल है. फिर उसके बाद रानी, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद सभी, फिर उसके बाद और. तो इस प्रकार से हम 2 अक्षर वाले शब्द उस कविता में देख सकते हैं. फिर जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जैसे कि उपयुक्त कविता के आधार पर मात्रा वाले सरल शब्द लिखिए. सो कविता के आधार पर मात्रा वाले सरल शब्दों को हमें लिखना है.
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर दीर्घ ई को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना है। मात्रा वाले शब्द जैसे कि ईख, ईद, खीर, तीर, वीर, जीत, तीर, नीर। तो इस प्रकार से आप जो ई मात्रा वाले शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर है परियोजना, यानी आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। अब क्या है देखिए, किन्हीं दो बाल कविताओं का संग्रह कर उसमें प्रयुक्त मात्राओं को लिखिए। बाल कविताओं का संग्रह आप कर सकते हैं, फिर उसमें कौन कौन सी मात्राएं आई हैं आप उसे संग्रह करके लिख सकते हैं। बहुत ही सरल सा एक कार्य है, आप लोग इसमें बहुत ही सरल रूप से सफलता पा सकते हैं। चलिए अब अंत में क्या है, जो सीखने का प्रतिफल 2 है, फिर उसके अंतर्गत आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो कार्य है वो कैसे रहा, ये देखने का समय है। और यहाँ पर आपके अध्यापक इस बात की पुष्टि करेंगे कि आपने किस लेवल पर उस काम को किया है। क्या स्तर 1 पर किया है, स्तर 2 पर, स्तर 3 पर, स्तर 4 या फिर स्तर 5। आपने जिस स्तर पर वो काम किया है उतने रंग ये सारे इमोजी के अंतर्गत आप देख पाएंगे। पिछली वीडियो में भी बताया है। यहाँ पर आपके विषय शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ आपके अभिभावक करेंगे और फिर यहाँ आपके जो मुख्य शिक्षक हैं वे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो बच्चों, अब तक आपने लगभग 40 मिनट से ऊपर आपने इस पाठ को ग्रहण किया है। तो अगर आपके कोई डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। ये जो PDF है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।